آج ہم آپ کو سعودی عرب کے شہر جدہ کا ایک عبرتناک واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ ایک شخص کے انتقال کے بعد اس کے پورے جسم سے چیٹیاں چپک گئیں۔ آخر اس نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ جس کی اسے اتنی عبرتناک سزا ملی؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اس واقعے کو پیش کریں گے تاکہ جس گناہ کے عوض اس شخص کو یہ عبرتناک سزا دی گئی، ہم اور ہماری دوست احباب تمام امت مسلمہ اس طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ یہ سچا واقعہ سعودی عرب کے شہر جدہ کا ہے۔ شہر جدہ میں شیخ عباس نامی ایک شخص رہا کرتے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت کے اعتبار سے بہت نوازا تھا، لیکن شیخ عباس خدمت خلق اور رضائے الہی کی نیت سے میت کو غسل دیا کرتے تھے۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میں دن بھر اپنے کاموں میں مصروف رہتا، مجھے کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کا کال آتا میت کو غسل دینے کے لیے، اور پھر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً میت کو غسل دینے کے لیے چلا جاتا تھا۔ ایک دن صبح سویرے میں اپنی فیکٹری پر گیا اور کام میں مصروف تھا۔ شام کے وقت مجھے اچانک کال آیا کہ فلاں مقام پر ایک میت کو غسل دینا ہے، آپ جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں۔ شیخ عباس صاحب کہتے ہیں کہ ان دنوں میری کار سروس سینٹر میں گئی ہوئی تھی، میرے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی، لیکن میں نے سامنے والے سے کہا کہ آپ ایک کام کریں، آپ میرے واٹس ایپ پر لوکیشن اور مکمل پتہ بھیج دیں، میں جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کے بعد شیخ عباس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے سارے کاموں کو مکمل کیا اور پھر ایک ٹیکسی کے ذریعے دیے ہوئے پتے اور لوکیشن پر میں پہنچ گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد میں نے دیکھا سامنے کوئی چھوٹا موٹا مکان نہیں بلکہ پورا محل نما ایک مکان موجود تھا۔ میں اس گھر کے دروازے پر پہنچا، وہاں ایک نوجوان کھڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا کیا آپ نے مجھے کال کیا تھا؟ میں شیخ عباس ہوں، میں میت کو غسل دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس پر وہ نوجوان بالکل بدتمیزی کے ساتھ مجھ سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے آپ ایک کام کریں، سیدھے اندر چلے جائیں، جو تیسرے نمبر کا کمرہ ہے اس کمرے کے دروازے پر دستک دیں، نوکر اندر سے دروازہ کھول دیں گے، اندر میت موجود ہے، آپ جا کر میت کو غسل دے دیں۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ اس آدمی سے مجھے یہ توقع نہیں تھی، اس نے نہ مجھ سے دعا سلام کیا، نہ خیر خیریت پوچھی، اور نہ ہی میرا شکریہ ادا کیا، بلکہ بالکل بدتمیزی والے لہجے میں اس نے مجھ سے بات کی۔ حالانکہ اس کا یہ انداز مجھے اچھا تو نہیں لگا، لیکن پھر بھی میں رضائے الہی کے لیے چپ چاپ آگے بڑھا اور اس کے بتائے مطابق میں تیسرے کمرے کے دروازے پر پہنچا۔ اس کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے ایک خادم نے دروازے کو کھولا۔ اندر داخل ہو کر میں نے دیکھا اندر کمرے میں 2-3 خادم موجود تھے اور کمرے کے بیچوں بیچ ایک پلنگ بچھا ہوا تھا جس پر شاید میت کو لٹایا گیا تھا، اسے اوپر سے نیچے تک چادر سے ڈھانکا گیا تھا۔ کمرے کے اندر اس میت اور 3-4 خدام کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ میں نے خدام سے پوچھا کہ کیا میت یہی ہے؟ ان لوگوں نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا میں شیخ عباس ہوں، میں میت کو غسل دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ لوگ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس میت کے قریب جاتے ہیں۔ شیخ عباس کہتے ہیں کہ میت کو پوری طرح سے چادر سے ڈھانکا گیا تھا۔ میں نے آہستہ سے اس کے چہرے کو کھولا، جب میں نے چہرے کو کھولا تو میری چیخ ہی نکل گئی۔ میں نے دیکھا کہ میت کے کان سے، ناک سے، آنکھوں کے راستے سے بڑی بڑی چینٹیاں نکل رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آج سے پہلے میں نے کئی میت کو غسل دیا تھا، یہاں تک کہ کئی ایسی میت جو کہ حادثات کا ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتی، جل جاتی، میں نے ایسی میت کو بھی غسل دیا تھا، لیکن اس طرح کا معاملہ میں نے پوری زندگی میں پہلی بار دیکھا۔ شیخ عباس کہتے ہیں میں نے جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالا، میں جیسے جیسے چادر کو نیچے کھینچتا جا رہا تھا، میں دیکھ کر حیران تھا کہ اس کے جسم کے تمام حصوں پر چیٹیاں لپٹی ہوئی تھی، اس کے پورے چہرے پر، گردن پر، سینے پر۔ شیخ عباس کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں آخر کروں تو کیا کروں۔ میں نے خدام کی مدد سے اس کے چہرے پر دوبارہ چادر کو ڈال دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنے ایک ساتھی کو کال کیا، وہ بھی میری طرح میت کو غسل دیا کرتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار فلاں فلاں پتے پر ایک میت کو غسل دینا
है, तुम जल्दी आ जाओ, अकेले मुझसे ये काम नहीं हो सकेगा। इस पर शेख अब्बास कहते हैं कि मेरे साथी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने कहीं और का वादा कर लिया है, मैं वहां जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। शेख अब्बास कहते हैं मैं अकेला था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैयत को गुस्ल दूं तो कैसे गुस्ल दूं। कुछ देर गौर फिक्र करने के बाद मैंने एक आलिम साहब को कॉल किया और कॉल करके मैंने उन्हें सारा मामला बता दिया। एक मैयत है जिसके पूरे जिस्म से चींटियां लिपटी हुई हैं, आखिर इस मैयत को मैं गुस्ल दूं तो कैसे दूं। शेख अब्बास कहते हैं कि इस पर आलिम साहब ने मुझसे कहा, अगर आप मुझसे मैयत के गुस्ल के ताल्लुक से कोई और मसला पूछते तो मैं आपकी रहनुमाई कर देता, लेकिन इस तरह की मैयत को गुस्ल कैसे दिया जाए ये मैं भी नहीं जानता, न मैंने कभी बुजुर्गों से इसके ताल्लुक से सुना, न मैंने कभी किताबों में इसके ताल्लुक से पढ़ा, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। शेख अब्बास कहते हैं न दोस्त साथ आकर गुस्ल देने को तैयार हुआ, न आलिम दीन ने मेरी कोई रहनुमाई की। अब मैं अकेला था, क्या करता मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ देर गौर फिक्र करने के बाद मैंने गुलामों से कहा, खुद्दाम से कहा, इस मैयत का कोई रिश्तेदार यहाँ पर मौजूद है, इसका बेटा, इसका भाई, इसके कोई और खानदान और रिश्तेदार। तो उन लोगों ने कहा कि यहाँ हम गुलामों और खुद्दामों के अलावा कोई और मौजूद नहीं है। अब शेख अब्बास कहते हैं कि मैं समझ गया ये काम इन्हीं खुद्दाम के साथ मिलकर मुझे अकेले करना था। मैंने उन लोगों से कहा, चादर को यूं ही पड़े रहने दो, एक काम करो, बाथ टब में जाकर पूरी तरह से पानी भर दो। अब उन लोगों ने बाथरूम में जाकर बाथ टब में हल्का गर्म पानी भर दिया। इसके बाद मैंने खुद्दाम की मदद से मैयत को चादर के साथ उठाया। हम उसे लेकर बाथरूम में गए और ले जाकर हमने बाथ टब में उसे लिटा दिया। जब बाथ टब में ले जाकर हमने मैयत को लिटाया तो उसके जिस्म से लिपटी हुई काफी चींटियां वो पानी के ऊपर तैरने लगी। अब मैंने खुद्दाम के साथ मिलकर उन चींटियों को बाथ टब से बाहर निकाला, पानी को साफ किया, मैयत को बाहर निकाला। उसके बाद दोबारा हमने बाथ टब को पानी से भर दिया। अब उस मैयत के जिस्म से कुछ चींटियां कम हो गई थी, लेकिन अब भी खत्म नहीं हुई। हमने दोबारा बाथ टब को गर्म पानी से भरा। उसके बाद मैयत को फिर से हमने उस बाथ टब के अंदर डाल दिया। फिर से एक बार चींटियां पानी के ऊपर तैरने लगी। हमने उन्हें निकाला, पानी को साफ किया, मैयत को बाहर निकाला। तीसरी मर्तबा फिर से हमने बाथ टब को गर्म पानी से भर दिया। शेख अब्बास कहते हैं कि हम ये देखकर हैरान थे, हम जितना चींटियों को उसके जिस्म से दूर करते चले जा रहे थे, उतना ही चींटियां उसके जिस्म से लिपटती चली जा रही थी और बाथ टब के ऊपर तैरती हुई नजर आ रही थी। हमने 5-6 मर्तबा इस तरह से उसे साफ किया और साफ करने के बाद फिर दोबारा ले जाकर हमने उसे बेड पर लिटा दिया। फिर शेख अब्बास कहते हैं कि खुद्दाम की मदद से मैंने उसके जिस्म पर खुशबू मली। उसके बाद मैंने उसे कफन पहना दिया। शेख अब्बास कहते हैं कि मैयत को मुकम्मल तौर पर तैयार करने के बाद अब मैंने खुद्दाम से कहा, मैंने कफन पहना दिया है, अब तदफीन की तैयारी आप लोग करें। मैं इजाजत लेकर वहां से पलटा। जब उस घर के दरवाजे पर आया तो मैंने देखा वो नौजवान पहले की तरह वहीं पर दरवाजे पर खड़ा था। मैंने उससे कहा, मैंने मैयत को गुस्ल दे दिया, कफन पहना दिया, अब मैं इजाजत चाहता हूं। इस पर वो शख्स कहने लगा कि आप एक काम करें, सामने हमारे ड्राइवर और नौकरों का कमरा है, वहां चले जाएं, खाना तैयार है, दस्तरख्वान लगा हुआ है, आप जाकर खाना खा लें। शेख अब्बास कहते हैं कि मुझे खाने की कोई हाजत नहीं है, दरअसल मैं काम अधूरा छोड़कर आया हूं, मुझे जल्द वापस जाना है, बस मुझे इजाजत दो। ये कहकर वो आगे बढ़े तो नौजवान कहने लगा, आपने मैयत को गुस्ल देने के कोई पैसे भी नहीं लिए और आप खाना भी नहीं खा रहे हैं, कम से कम हमें खिदमत का कुछ तो मौका दें। इस पर शेख अब्बास ने उस नौजवान से कहा, बस आप अपनी दुआओं में हमें याद रखें, इतना ही काफी है। ये कहकर शेख अब्बास मुस्कुराते हुए घर से बाहर निकल जाते हैं। आप फरमाते हैं कि अगरचे शाम हो चुकी थी लेकिन फिर भी धूप काफी ज्यादा थी। मैं सड़क के किनारे आकर खड़ा हो गया, टैक्सी का इंतजार करने लगा। तकरीबन 5-7 मिनट का वक्त गुजर गया लेकिन दूर दूर तक कोई टैक्सी
नजर ही नहीं आ रही थी। इस पर वो नौजवान मेरे पास आता है और आकर कहता है, आप परेशान ना हो, मैं अपनी कार लेकर आता हूं, आपको आपके पते पर पहुंचा दूंगा। शेख अब्बास ने कहा, नहीं नहीं, आप रहने दें, मुझे टैक्सी मिल जाएगी। इस पर वो नौजवान कहता है कि आप टैक्सी ना लें, मैं अभी अपनी गाड़ी लेकर आता हूं। इसके बाद वो नौजवान अपनी कार लेकर शेख अब्बास के सामने आकर खड़ा हो जाता है। शेख अब्बास कहते हैं, मैं ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता हूं, उसका शुक्रिया अदा करता हूं, अपना पता बताता हूं। इसके बाद वो सड़क पर तेजी के साथ कार को दौड़ाना शुरू कर देता है। शेख अब्बास कहते हैं, 5-7 मिनट तक तो मैं खामोश रहा, फिर फितरत इंसानी की बुनियाद मैंने उससे बातचीत करना शुरू किया। मैंने उससे कहा, अगर आप बुरा ना मारें तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। नौजवान कहने लगा, फरमाइए। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने उससे कहा, आप मुझे ये बताएं, आप मैयत के क्या लगते हैं, आपका उनके साथ क्या रिश्ता है। इस पर वो नौजवान कहने लगा, दरअसल मैं उनका पोता हूं, वो मेरे दादा लगते हैं। शेख अब्बास कहते हैं कि मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर मैंने उससे कहा, अच्छा अगर एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। नौजवान ने कहा, जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं। शेख अब्बास कहते हैं, आपके दादा, मैंने देखा कि उनके इंतकाल के बाद उनके पूरे जिस्म से चींटियां लिपट गई थी। हालांकि मैंने इससे पहले सैकड़ों मैयत को गुस्ल दिया है, लेकिन आज तक मैंने ऐसा मामला कभी किसी मैयत के साथ नहीं देखा। ये मेरी जिंदगी का पहला तजुर्बा है कि आप मुझे ये बताना जरूरी समझेंगे, आपके दादा के मामलात कैसे थे, उनका इखलाक कैसा था, उनका किरदार कैसा था, आखिर उनके अंदर वो कौन सी बुराइयां थी कि जिसकी वजह से बाद मरने के उन पर यह अजाब मुसल्लत कर दिया गया। शेख अब्बास कहते हैं, जब मैंने ये सवाल पूछा तो वो नौजवान कुछ शर्मिंदा हो गया, फिर उसकी आंखें नम हो गई। फिर उसने कहा, ये बात हरगिज मैं किसी को ना बताता, लेकिन चूंकि आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बताए देता हूं। आपने मेरे दादा की मैयत को गुस्ल देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया, इसलिए ये राज मैं आप पर जाहिर कर देता हूं ताकि आप भी लोगों को बताएं और लोग इबरत हासिल कर सकें। शेख अब्बास कहते हैं, मैं उसकी बात पूरी तवज्जो के साथ सुन रहा था। वो नौजवान कहता है, यूं तो मेरे दादा के अंदर और कोई बुराई नहीं थी। मेरे दादा सौम व सलात के पाबंद थे, सदका वो खैरात भी किया करते थे, कुरान की तिलावत भी करते थे, जिक्र व अस्कार भी वक्तन फवक्तन किया करते थे। लेकिन मेरे दादा के अंदर एक सबसे बड़ी बुराई थी, वो ये थी, वो अपने बूढ़े माँ बाप से बहुत ज्यादा नफरत किया करती थी। हर छोटी छोटी बात पर अपने बूढ़े माँ बाप को जलील करते थे, और कभी कभी तो वो हम लोगों के सामने भी, रिश्तेदारों और मेहमानों की मौजूदगी में भी, यहाँ तक कि खुद्दाम के सामने भी अपने वालिदैन से बदतमीजी किया करते थे। और सिर्फ उनका गुस्सा उनकी जबान तक महदूद नहीं था, बल्कि कभी कभी वो ज्यादा गुस्से में होते तो अपने माँ बाप पर हाथ तक उठाया करती थी। हम उन्हें रोकने की कोशिश तो करते, लेकिन हम नाकाम रहते थे। वो अपने माँ बाप का जरा भी लिहाज नहीं करते थे, उनका जरा भी अदब नहीं करते थे, बल्कि लोगों की मौजूदगी में अपने माँ बाप को ताना भी देते, झिड़कियां भी देते, उन्हें गालियां भी देते, और कभी कभी उन पर हाथ भी उठाया करते थे। और मुझे लगता है हमारे दादा की यही बदआमाली है, यही गुनाह है जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर यह अजाब मुसल्लत कर दिया। अल्लाह अकबर। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने कहा, यकीनन आपके दादा की यही बुराई है जिसकी वजह से अल्लाह ने उन पर यह अजाब मुसल्लत किया। इसके बाद शेख अब्बास कहते हैं, मैं लोगों को यह वाकया सिर्फ इसलिए बताता हूं ताकि लोग इस वाकये से इबरत हासिल करें और अपने माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक से पेश आया करें, अपने वालिदैन की लोगों के सामने बेहुरमती, अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी और बदसलूकी ना किया करें। शेख अब्बास कहते हैं कि मैंने उस नौजवान से कहा, अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूं। उसने कहा, जी हाँ, आप जो कहना चाहते हैं कहें। शेख अब्बास कहते हैं, मैं माजरत के साथ ये बात कहना चाहता हूं, अभी आपके दादा के जिस्म से रूह परवाज हुई और आपके दादा पर ये चींटियों का अजाब मुसल्लत कर दिया गया। जब आप लोग इन्हें कब्र के हवाले करेंगे तो जरा सोचें कि कब्र में उन पर कौन सा अजाब मुसल्लत किया जाएगा। अभी तो मैदान कयामत बाकी है, अभी तो आखिरत का हिसाब किताब बाकी है, अभी तो जन्नत और जहन्नम के फैसले बाकी हैं। अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने वाले का जाहिर है कि अंजाम बहुत बुरा होता है। शेख अब्बास कहते हैं, इस इबरत वाले वाकये को मैं लोगों के सामने बस इसलिए
بیان کرتا ہوں کہ لوگ اپنے ماں باپ کا احترام کریں۔ ناظرین اکرام، واقعی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ تمام گناہوں میں ایک گناہ ایسا بھی ہے کہ جس کی سزا اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کے ساتھ ساتھ بندے کو دنیا میں بھی دیتا ہے، اور آپ جانتے ہیں وہ گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرنا، اپنے ماں باپ کی دل آزاری کرنا، اپنے ماں باپ کو رلانا، ستانا، انہیں پریشان کرنا، یہ کیسا گناہ ہے کہ جس کی سزا بندے کو آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی دی جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے والدین سے محبت کرنے، ان کا حق ادا کرنے، ان کی خدمت کرنے اور انہیں خوب راضی کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے والدین سے بدسلوکی، بدتمیزی، بے ادبی سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔